Hallelujah. Glory Jesus. Lord. Jesus. Hallelujah. खुदावंद के सामने अपने सर नीचे कर दें। हालेलुया। ऐ बाप, मैं अपना सर तेरे सामने झुकाता हूँ। तेरी उस पहचान की वजह से जो मुझे बख्शी गई, उस इंसाफ की वजह से जिस इंसाफ का तूने मुझे मुकाशफा दिया है, उस फजल की वजह से मैं अपना सर झुकाता हूँ, जो मुझे तेरे सामने खड़ा होने की बेहद ताकतें बख्शता है। Jesus. أولا خطبرسي يا هاتونسفيس يا هفونسلي يا هادنسفيس अपना सर झुकाए रखें और एक हाथ खुदा की तरफ बुलंद करें। अव्वला खुतबुरस्वीस इदनो वादरा वशबबिला खुतबुरस्वीस ला वनादरुवस्वीस। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज कलाम का टॉपिक है बदन की 5 ताकतवर रग़बतें। क्या टॉपिक है जी? बदन की 5 ताकतवर रग़बतें। बदन की 5 ताकतवर ख्वाहिशात। बदन की 5 ऐसी कुव्वतें जो इंसान को मुश्किलात में डालकर उसे खुदा, आसमान, पाक माहौल से दूर ले जाती हैं। और हम गौर करेंगे, ये चीज पौलुस रसूल अजीब तरीके से बयान करता है। पौलुस की मार्फत मुकद्दस रोमियो की कलीसिया को लिखा गया ये खत है। 7 जी पढ़ दीजिए। अजीब बात है, जब मैं ये पढ़ रहा था, पौलुस अपने बदन के बारे में कुछ कहता है। और आप जानते हैं कि बदन खुदा की अनोखी तख्लीक है। बदन खुदा का एक अजूबा मंसूबा और अजूबा तख्लीक है, जिसकी वजह से इस दुनिया में आसानियां कम पैदा हुई और मुश्किलात ज्यादा पैदा हुई। हालांकि ये खुदा की तख्लीक है, मगर गुनाह की गिरावट के बाद इंसानी बदन, मर्द का बदन, औरत का बदन, खोजों का बदन और 2 और जो जिनसे हैं, 5 जिन्स में इंसान है, मर्द, औरत, खोजा, आगे उसमें भी फीमेल होता है। 5 किस्म के बदन जमीन पर हैं। 5 किस्म के जेंडर औरत से पैदा होते हैं, मर्द और औरत के मिलाप से। मगर इस बदन के बारे में पौलुस रसूल ये बात करके
ایک عجیب سے سوال میں ڈال دیتا ہے، سوال پیدا کر دیتا ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ وہ اس بدن کے بارے میں کیوں ایسے کہتا ہے؟ جی پڑھ دیجئے ذرا۔ رومیو 7:24 میں یوں رقم ہے، رومیو 7:24 میں ہائے یہ میں رقم ہے، کیسا کمبخت آدمی ہوں، ہائے، عجیب بات ہے، پڑھیں جی کیا کہتا ہے؟ ہائے میں کیسا کمبخت آدمی ہوں، ہائے میں کیسا کمبخت آدمی ہوں۔ میں کہہ رہا تھا کہ رسول اعظم، رسولوں کا رسول، جس کو بائبل مقدس اور دنیا کے عالم چھوٹا لٹل کرائسٹ کہتے ہیں، چھوٹا مسیح کہتے ہیں، مگر پولس اپنے آپ کو کیا کہتا ہے جی؟ ہائے ہائے کیسا کمبخت آدمی ہوں، میں کیسا کمبخت آدمی ہوں۔ یہ وہ ہائے بھی کر رہا ہے، اپنے آپ کو کمبخت بھی کہہ رہے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے اور کہہ کیوں رہا ہے؟ وہ آہیں کیوں بھر رہا ہے؟ وہ ہائے 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 کیوں کر رہا ہے؟ پولس کیوں کر رہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں وہ ہائے ہائے کر رہا ہے؟ کیوں وہ آہیں بھر رہا ہے؟ کیوں وہ اپنے آپ کو کم بخت کہتا ہے؟ اور کم بخت کا مطلب کیا ہے؟ بدقسمت، بدقسمت۔ اور آگے پڑھ دیجیے، آگے کیا کہتا ہے؟ اس موت کے بدن سے، اس موت کے بدن سے مجھے کون چھڑائے گا، مجھے کون چھڑائے گا؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ ہائے اس نے کس کی وجہ سے کیا؟ موت کے بدن سے کون چھڑائے گا، خالی بدن کی وجہ سے کر رہا ہے۔ ہائے اس نے کیوں بھری ہے؟ آہیں کیوں بھر رہا ہے؟ بدن کی وجہ سے۔ اپنے آپ کو کم بخت کیوں کہہ گیا؟ بدن کی وجہ سے، بدن کی وجہ سے۔ میں کہہ رہا تھا کہ یار مسئلہ کیا ہے؟ پولس اتنا مشکل میں کیوں ہے؟ پولس اتنی بے چینی میں کیوں ہے؟ وہ کیوں ایسے ڈائلاگز بولتا ہے روح القدس کی ہدایت سے اور رومیوں کی کلیسیا کو؟ اس آیت کے ساتھ ایک آیت جڑی ہوئی ہے، اور وہ آیت اگر اس کی میں ابھی وضاحت کروں تو ٹائم چلا جائے گا۔ میں اپنے پوائنٹس پر آنا چاہتا ہوں اور اس آیت کو میں سکپ کر رہا ہوں۔ وہ ہے کہ جب حکم آیا تو گناہ زندہ ہو گیا۔ کیا آیت ہے؟ جب حکم آیا تو گناہ زندہ ہو گیا۔ یہ ایک پیچیدہ آیت ہے، مگر ہم پولس کی ہائے پہ جائیں گے، کم بخت پر جائیں گے کہ وہ کم بخت کیوں کہتا ہے، وہ آہیں کیوں بھرتا ہے، اور وہ اس بدن کی آپ بھی کوئی پرابلم میں ہیں بدن کی وجہ سے؟ بڑے ڈیپ ریویلیشنز ہیں اس کے اندر، بڑی وہ گہری باتیں کر رہا ہے۔ وہ اس کے پیچھے ضرور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں نے اس کو ٹاپک دیا ہے، بدن کی 5 طاقتور رغبتیں۔ وہ 5 ناجائز رغبتیں، وہ 5 ناجائز خواہشات ہیں بدن کی، جس کی وجہ سے پولس ہائے ہائے کر رہا ہے۔ ہائے ہائے پر وہ کہہ رہا ہے کیا کریں؟ آہیں کھینچ رہا ہے، وہ رو رہا ہے، وہ چلا رہا ہے، اور ایک جگہ ذرا کہتا ہے ہائے میں کیسا کم بخت آدمی ہوں، اس موت کے بدن سے مجھے کون چھڑائے گا؟ اور اگلی آیت بتا رہی ہے کہ وہ اس بدن سے چھوٹنا چاہتا ہے۔ وہ اس بدن سے کیا کرنا چاہتا ہے؟ آزاد ہونا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں آزاد ہو جاؤں، میری روح نکل جائے، میری ابدیت نکل جائے۔ یاد رکھیں انسان کی تخلیق میں ابدیت بھی شامل ہے، یہ میں نے آپ لوگوں کو سکھایا ہوا ہے۔ کیسے؟ کیا جی؟ روح، کیونکہ خدا نے انسان کو اس کا جب بدن بنایا تو اس میں کیا ڈالی؟ روح، اور روح جو ہے یہ ابدی ہے، یہ مرتی۔ سو انسان کے اندر ابدیت ہے۔ واہ واہ،
पौलुस अपनी अब्दियत को लेके उड़ जाना चाहता है। तालियां जी पौलुस के लिए। क्या मुखाशवा दे रहा है, क्या बात कर रहा है, कह रहा है कि मैं अपने अंदर की अब्दियत को लेकर उड़ जाना चाहता हूं, चले जाना चाहता हूं। मैं इस बदन में नहीं रहना चाहता, क्योंकि ये मिट्टी का, ये गोश्त का, ये नसों का बदन है। ये इसके अंदर मेरी एक अब्दी चीज है, मेरी एक अब्दियत है, मैं उसको बचा लूं। और याद रखें, इंसान के अंदर दाखिल की हुई अब्दियत गलत अब्दियत में भी जा सकती है और अच्छी अब्दियत में भी जा सकती है। ये थोड़ा सा मैं बता दूं, जहन्नम आर्जी है या अब्दी? तो अगर आपकी रूह गुनाह की हालत में निकलेगी, इस गुनाह के, मौत के बदन से जब आपकी रूह निकलेगी गुनाह की हालत में, तो ये अब्दी जहन्नम में जाएगी, जो कभी खत्म नहीं, क्योंकि रूह मरती नहीं। गुनहगार की रूह भी मरती नहीं और रास्तबाज की भी रूह मरती नहीं। रास्तबाज की रूह इस बदन से छूटकर अब्दी बादशाही में, और गुनहगार की रूह इस बदन से छूटकर अब्दी जहन्नम में। याद रखिएगा, अपना ये आपका जो बदन है, ये डिस्पोजेबल ग्लास की मानिंद है, जो सफर के लिए आप लेकर जाते हैं और उसमें पानी पी के बाद में आप मरोड़ के, और ये बदन मरोड़ के खुदा ने फेंक देना है। ये एक्सपायर होने वाला बदन है, तू खाक है और फिर खाक में है ना। इस आयत के अंदर काफी कुछ, इस आयत के अंदर बहुत कुछ है। वो कहता है, हाय मैं कमबख्त आदमी हूं और मुझे इस मौत के बदन से कौन छुड़ाएगा? अपने आप को छुड़ाना है अपने बदन से। क्या छुड़ाना है? अपना कौन सी? अब्दी रूह। सारे बोले, अपने बदन से क्या छुड़ाना है आपने? अब्दी रूह। क्योंकि जहन्नम भी अब्दी है और आसमान की बादशाही भी अब्दी है। वो नेक रूहों के लिए, पाक रूहों के लिए, निजात याफ्ता। तो पौलुस इस बदन में डिस्टर्ब है। पौलुस इस बदन में क्या है? जब 5 ताकतों का मैं, अच्छा एक और थोड़ा सा रोशनी डालेंगे। पौलुस की कुश्ती उसके अपने बदन से भी होती है, फिर भी वो इस बदन से छूटना चाहता है। इसका मतलब है वो कुश्ती मुसलसल करना नहीं चाहता, वो अपने बदन से कुश्ती मुसलसल नहीं करना चाहता। वो कहता है बेहतर है कि अब मेरी जंग मेरे बदन से क्या हो जाए? खत्म हो जाए। है ना? इस आयत के अंदर काफी चीजें, जब मैं इस पर रुका मेडिटेशन के लिए, इस आयत के अंदर गया, इस आयत के दरवाजे खुले और मैं इस आयत के अंदर जब गया, तो मुझे बहुत कुछ, ये सब कुछ जो मैंने बोला है, ये सब कुछ मुझे दिखाई दिया, मुझ पर जाहिर हुआ कि इस आयत के अंदर पौलुस गया है और ये सारी चीजें वो देख रहा है। हाय, मैं इस बदन के अंदर से अपनी अब्दियत आजाद कर लूं। खजाना है, चाहे ये खजाना अपनी रूह का खजाना जहन्नम में डाल दो, चाहे अब्दी बादशाही में डाल लो, मगर खुदा ने इंसानी रूह के लिए अब्दी 2 सेक्शन, 2 दुनियाएं बनाई हैं। एक जहन्नम की दुनिया और एक आसमान की दुनिया, जहां खुदा खुद रहता है और उसके पाक फरिश्ते रहते हैं। पौलुस को के लिए तालियां बजाएं, वो क्या मुकाशफा दे रहा है जी। और कुछ तो कहते हैं कि ए जग ए बदन मिठा ते अगला किस। अरे अगर तुम इस बदन से आजाद नहीं होना चाहते,
एक दिन तो खुद ब खुद ये रूह निकल कर जाएगी, खत्म हो जाएगा निजाम, सिस्टम खत्म हो जाएगा। अरे अपने ऊपर हाथ रख के अपनी अब्दियत के लिए दुआ किया करो। हाय हाय हाय, यीशु ने कहा मैं अपनी रूह तेरे हाथों में, स्टिफनेस संसार होते हुए पत्थरों का ढेर उसके ऊपर है, अपने दुश्मनों के लिए कहता है इनका गुनाह इनके जिम्मे ना लगा, मैं अपनी अब्दियत तेरे हाथों में सौंपता हूं। तालियां स्टिफनेस के लिए। अपनी अब्दी कौन सी चीज बचानी है? ये मर्दी नहीं जे। कई लोग इतने दुखों में चले जाते हैं, पौलुस रसूल आहें खींच रहे ना, कह रहे ना हाय मैं कैसा कमबख्त आदमी हूं, इस मौत के बदन से मुझको कौन छुड़ाएगा। वो छूटना चाहता है, वो आजाद होना चाहता है, वो इस बदन से एक तरह से वो इसको कह रहा हो यार मेरी जान छाड़, मेरे बदन मेरी जान छोड़, मैं तुझ में से निकलना चाहता हूं। मगर कुछ लोग तो इन मुकाशफात से फारिग हैं और उन्होंने जरा पौलुस की कुश्ती निकालें और अजीब कुश्ती लड़ रहा है, अपने बदन से कुश्ती कर रहा है वो। जी पढ़ दीजिए जरा। पहला करंथियों हाँ जी 9 बाब 26 आयत में यूं रकम है, हाँ जी, बस मैं भी इसी तरह दौड़ता हूँ, बस मैं भी इसी तरह दौड़ता हूं, यानी बेठिकाना नहीं, यानी बेठिकाना नहीं, मैं इसी तरह मुक्कों से लड़ता हूँ, मैं इसी तरह मुक्कों से लड़ता हूं। मुक्के बॉक्सिंग, टिश टिशन टिशन टिशन, वो मुक्के मार रहा है, वो मुक्कों से लड़ रहा है। मगर हैरानगी की बात है कि वो किसी से नहीं लड़ रहा। आगे पढ़ दीजिए, किससे लड़ यानी रहा है? उसकी मानद नहीं जो हवा को मारता है, हाँ, बल्कि मैं अपने बदन को मारता कूटता, बल्कि मैं अपने बदन के साथ बॉक्सिंग खेल रहा हूं, मैं अपने बदन को मार रहा हूं ताकि वो जो बदन की 5 नाजायज रगबतें हैं, नाजायज ख्वाहिशात हैं, उन पर क्या आ जाऊं, उसे गालिब आ जाऊं। काबू में रखता हूँ। कहता है मैं अपने बदन को मार रहा हूं, मुक्के मार रहा हूं, रेसलिंग कर रहा हूं, लड़ रहा हूं, कुश्ती कर रहा हूं, अपने बदन को मार रहा है, रोक रहा है, रुक जा, इन 5 रगबतों से रुक जा, इन 5 नाजायज धंधों से, नाजायज ख्वाहिशात से रुक जा, ऐ मेरे बदन रुक जा। रोक लेंगे हैं, लड़ रहे ना। कहता हाय मैं कैसा कमबख्त आदमी हूं, इस मौत के बदन से मुझे कौन, वो छूटना चाहता है, वो आजाद होना चाहता है, वो रिहाई पाना चाहता है। और आज मैं बोलूंगा नहीं, थोड़ा थोड़ा सा मैं बताऊंगा आखिर ये कौन सी 5 रगबतें हैं जो बदन को अपने हसार में लेकर और आपकी अब्दियत को और खुदा की अब्दियत को मुतासर करता है। ये कौन सी चीजें हैं? नंबर 1, बदन की रगबतें, बदन की 5 ताकतवर नाजायज रगबतें, बदन की 5 नाजायज ताकतवर रगबतें। नंबर 1, बेसब्री की रगबत। ये इंसानी बदन बाइबल फरमाती है, खुदा फरमाता है, नबी फरमाते हैं, रसूल फरमाते हैं, बाइबल के डॉक्टर्स बताते हैं कि ये बदन क्या करता है, बेसब्री करता है। पहले इसकी नाजायज ख्वाहिश कौन सी है? बेसब्री। हुण तुहानू मैसेज बिल्कुल मैं सादा कर दिता है, हुण तुहानू पता चलना शुरू हो जाएगा कि साडा बदन की करता है, बेसब्री करता है। सबर नाम
से ये वाकिफ नहीं होना चाहता। बदन बेसब्री के मुजाहरे करता है, बदन सब्र नहीं करता। बच्चा जब पैदा होता है ना, वो माँ के दूध के लिए बिलखना शुरू कर देता है। पर माँ कहती ठहरो, मैं बर्तन धो रही हूँ, मैं आ रही हूँ, मैं देती हूँ। वो किधर सब्र करता है, वो चैं 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 करता है। थोड़ा सा और बड़ा होता है, फिर वो कहता है मामा मुझे भूख लगी है, मुझे रोटी दो। फिर वो रोटी के लिए बेसब्रा हो जाता है। फिर नन्ही मुन्नी ख्वाहिशात के लिए वो इंसान बेसब्रा हो जाता है। इब्लीस उसके अंदर बेसब्री पैदा करता है और इस बदन के अंदर ऑटोमेटिकली भी गुनाह की गिरावट के बाद बेसब्री समा चुकी है। पहली जो इस बदन की, वो इसलिए कहते ना हाय, मेरा पौलुस कहता है मेरा बदन मुझसे छूट रहा है, बेकाबू हो रहा है, बेसब्रा हो रहा है, सब्र नहीं कर रहा, ये रुक नहीं रहा, ये थम नहीं रहा, ये किसी भी चीज के लिए इंतजार करना नहीं चाहता। क्या? बदन किसी भी चीज के लिए इंतजार करना, वो कहता है फटाफट है, फटाफट, झटपट, क्विकली, जल्दी जल्दी, फिल फॉर, आनन फानन, जो कुछ मुझे चाहिए जल्दी मिल जाए। सब्र मुझसे नहीं होता और बेसब्री करके फिर वो इंसानी बदन जो कानून तोड़ता है, जो दरवाजे तोड़ता है, जो दीवारें फिलांगता है, जो खुदा के मामलात को कुचल कर दनदनाता फिरता भागता दौड़ता हुआ आगे ही बढ़ता जाता है, क्योंकि बदन क्या नहीं कर रहा? सब्र। तो आप बेसब्री को कोई कमजोर चीज ना समझें। अरे अपना सब्र अपनी बेसब्री से ज्यादा ताकतवर रखें। तालियां। अपना सब्र अपनी बेसब्री से ज्यादा ताकतवर रखें। इसलिए वो कहता है हाय, मैं कमबख्त आदमी हूं, मैं छूटना चाहता हूं, क्योंकि इस बदन को मैं रोकता हूं, मैं इंतजार की जंजीरें पहनाता हूं, मैं सब्र के संगलों से बांधता हूं, तोड़ देता है, निकलता है, भागता है, दनदनाता है। किसी भी चीज के लिए यह सब्र करना, दौलत हासिल करने के लिए सब्र आपने कहना नहीं करना चाहता, दौलत हासिल करने के लिए सब्र ये नहीं करना चाहता, किसी अच्छी बरकत को हासिल करने के लिए यह सब्र, या किसी भी चीज के लिए सब्र नहीं करना चाहता। इंसान बचपन से लेकर बुढ़ापे तक बेसब्री का शिकार रहता है, मगर जिनका सब्र उनकी बेसब्री से ज्यादा ताकतवर है, वो खुदा को खुश कर पाते हैं और अपने बदन को काबू में रखते हैं। ये बदन ताकतवर घोड़ा है, टाप मारता दौड़ता हुआ चला जाता है बेसब्री से, मगर मुबारक है वो बदन जो सब्र से आगे जाए। तालियां। हालेलुया। है ना ताकतवर रगबतें? अरे ये बदन बेसब्री की ताकत से भरा हुआ है, बेसब्री की रगबत से भरा हुआ है। इसलिए वो कहता है, क्या कहता है? हाय मैं कैसा कमबख्त आदमी हूं, इस मौत के बदन से मुझे कौन छुड़ाएगा? गालिब आएंगे बदन पर। अरे ये बदन इंसान की रूह से बेकाबू हो चुका है, बेकाबू हो चुका है, उसके ज़मीर की नहीं सुनता है।
آوازیں ہیں نا، خدا کی آواز اور اس کے اپنے ضمیر کی آواز. ایک لڑکا میرے پیچھے پڑ گیا، او سر جی مینوں پاکرو کیوں نہیں ملتا، کیوں نہیں ملتا، کیوں نہیں ملتا، مجھے پاکرو چاہیے، پاکرو چاہیے، پاکرو چاہیے. او میں کہ یار دعا کرتے جاؤ تمہیں پاکرو ملے گا. ایک دن مجھے خدا کی حکمت نے کہا، بائبل میں لکھا نا، اور خدا کی حکمت تیرے دل میں داخل ہوگی. اور حکمت روح القدس کی نعمت ہے، اور یہ 9 نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے. اور مجھے خدا نے کہا، خدا کی حکمت نے کہا، اس کو بتا یہ تیری جان ہی نہیں چھڑتا، ہر رفاقت میں یہی کہتا مجھے پاکرو ملے، مجھے پاکرو ملے. بھائی پاکرو کا بپتسمہ یوحنا نبی نے کہا تھا، میں تو تم کو پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، پر جو میرے بعد آتا ہے وہ تمہیں روح کا بپتسمہ دے گا. روح کا بپتسمہ یسوع دیتا ہے. یہ بھی پادریاں دے ہاتھ چوندا نا تے ساریاں نہیں دے دیندے ہیں. پانی دا تے بپتسمہ پادریاں دے ہاتھ چوے. وہ جیڑا للو پنجو آندا ہے وہ آؤ جی بپتسمہ لو، تے پھر ویڈیو بنا کے نیٹ پہ چڑھاتے ہیں، دیکھو ہم نے 150 بپتسمہ دے دیا. گئے کتنے تھے لینے؟ 50. ادھر جا کے کتنوں نے لے لیا؟ ایمرجنسی بپتسمے، ایمرجنسی بپتسمے. ارے بپتسمے کے لیے تو پہلے تعلیم دی جاتی ہے، ایمان دیا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، قائل کیا جاتا ہے، گواہی لی جاتی ہے، پھر پانی کا بپتسمہ دیا جاتا. یوحنا نبی چنگا سی، وہ بپتسمے دے رہا سی نا، تے فقی فریسی بھی آئے بپتسمہ لین. وہ کہیں چلو اسی بھی لئیے. تو جب وہ آئے نا تو یوحنا نبی خوش نہیں ہویا. وہ جیو جی جیو، آج تے میری گواہی ہوئے گی کہ میں 100 نو دے رہا سا تے 300 اتوں ہی آگے تے میں انہوں نے بھی بپتسمہ دیتا. مگر جب فقی فریسی بپتسمہ لینے آئے تو نبی نے کہا، اے شام کے بچوں، تمہیں کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے؟ انہوں نے کہا تہاڈی نیچر اندروں سپ دیے تے مینوں کہہ رہے ہو نبی نو کہ سانو کی دے دے. ارے یہ بدن بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، یہ بے صبری کا گدام ہے. ہاں بدن کیا ہے؟ بے صبری کا گدام ہے، یہ بے صبری کا شہر ہے، یہ بے صبری سے بھرا ہوا ہے. اس لیے پولس رسول اپنے آپ کو کیا مار رہا ہے؟ مکے. کس کے مکے؟ کس کو مار رہا ہے؟ اپنے بدن کو مار رہا ہے. کہتا ہے میرے پیچھے بولو یہ آیت ساری، ہائے میں کیسا کمبخت آدمی ہوں، ہائے میں ذرا ہوا پر ہو ذرا، ہائے میں کیسا کمبخت آدمی ہوں، اس موت کے بدن سے مجھے کون چھڑائے گا؟ اس بے صبری کی طاقتور رغبت سے پولس بھی ڈسٹرب ہے. پولس بھی کیوں ذہن ہونا ڈسٹرب؟ بدن چھڑاندہ ہے اپنا آپ، چھانٹو مینوں نہیں، بے صبری بدن. ارے کنٹرول کرو. اس میں بڑی خوبصورت چیزیں آئیں گی اور چلیں اتنا ہی کافی ہے. پہلی طاقتور رغبت کیا ہے؟ کس کی رغبت ہے یہ؟ اس لیے وہ کیا بھر رہا ہے؟ آہیں بھر رہا ہے. دوسری اس کی طاقتور ناجائز رغبت ہے کہ میں بھی بولا، زبان کی بے لگامی کی رغبت. جدو میں زبان تے اگلی باری بولاں گا نا تو انہوں لگ لو جائے گی کہ زبان کنا اچھل دی ہے. بندہ بانچو اچھل دا ہے، پہلے زبان اچھل دی ہے.
तो पौलुस इससे भी डिस्टर्ब है। पूरा याकूब के खत में से एक चैप्टर पूरा जुबान की वजाहत पर याकूब ने खर्च कर दिया। एक पूरा सफा, एक पूरा पेज बाइबल का, एक पेज 2 कॉलमों में एक पेज पूरा जुबान की वजाहत पर लिख दिया। जुबान ज़ाहिर है कातिल है। तो ये 5 ताकतें सुन लें, कौन सी हैं जो आपके बदन की हैं, जो आपके बदन को उछाल की हालत में रखती हैं। बेसब्री की रग़बत बदन की, ज़ुबान की बेलगामी की रग़बत बदन की, बरतरी ले जाने की रग़बत, ये भी बदन बर्दाश्त नहीं जे करदा तुहाडे कोलों कोई तुहाडे अगे लंघ जावे, तुसी ओदियां लत्तां खिंचोगे, और नहीं तू इत्थे ही मारो मैं अगे जाना है। बरतरी ले जाने की नाजायज रग़बत, बरतरी ले जाने की नाजायज रग़बत। एक क्लास च बच्चे दे 10 नंबर आन, दूजे दे 9 आ जान, ओनू घूरियां वटदा, इतके 10 आ गए, वे हुण की कर दिया है, इंज टेस्ट लैके इंज घूम दिया है। तो इस पे बोलेंगे, एक एक करके बोलेंगे। और चौथी बदन की ताकतवर जो रग़बत है, जिनसी जज्बात की नाजायज रग़बत। जिनसी बदन की जिनसी जज्बात की रग़बतें, इत्थे मैं रग़बतें लिखे है, क्योंकि बदन जिनसी जज्बात के लिए रग़बत नहीं बल्कि रग़बतों की तरफ लपकता है। तो पौलुस इससे भी डिस्टर्ब है, एवं नहीं वो मुक्के मार रहा। और 3 चीजें मैं बताऊंगा जिनसी जज्बात को कंट्रोल करने वाली, जिनसी जज्बात की रग़बतों को कंट्रोल करने वाली 3 चीजें। नंबर 1, खुदा का कलाम। तू जना है, तालियां कलाम की वजाहत के लिए तालियां बजाओ यार। जिनसी जज्बात की रग़बतों को कंट्रोल करने के लिए, बदन की जिनसी रग़बतों को कंट्रोल करने के लिए 3 फार्मूले। पहला फार्मूला खुदा का कलाम। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चराग और राह के लिए रोशनी है। दूसरी, बीवी। जिनसी रग़बतों को कौन रोक सकती है? और शोहर। बीवी की जिनसी नाजायज रग़बतें रोकने के लिए शोहर उसका मामन हो सकता है, और शोहर की रग़बतों को रोकने के लिए बीवी को खुदा ने, वाइस की किताब में लिखा है, 1 से बेहतर, क्योंकि जब एक गिरता है तो दूसरा, जब तुम अकेले लेटो गए तो कैसे एक गर्म होगा है? अरे ये बाइबल के हवाला जात हैं। जिनसी नाजायज रग़बतों को रोकने के लिए पहला फार्मूला खुदा का कलाम, खुदा का चराग। दूसरा फार्मूला क्या है नाजायज जिनसी रग़बतें रोकने के लिए? बीवी और शोहर। और मैंने कई बीवियों को देखा है, वो कहते जब परा होके मार, तो जो किधरे मारदा है तो फिर कहती है हाय मैं मर गई। भाई तू क्यों मरी है? तेनू तकलीफ होती सी उदों? अरे खुदा का कलाम है, पूरा 1 चैप्टर मियां बीवी के जिनसी ताल्लुकात पर पौलुस रसूल ने ग्रंथियों की कलीसिया को पूरा 1 चैप्टर लिख के दे दिया है, और दीगर 66 किताबों में बेशुमार हवाले हैं। अरे उस वक्त तू किधर मरा था अपनी बीवी के लिए, जब वो किसी दूसरे पे जाके मर गई। ये किसकी रग़बत है? बदन की नाजायज
ताकतवर जिनसी रगबतें। अरे शौहर अपनी बीवी के लिए फराहम रहे और बीवी अपने शौहर के लिए फराहम रहे। कौन फरमाता है? कलाम फरमाता है। कलाम के लिए तालियां बजाओ। और उन बुद्धू बीवियां और बुद्धू वो शौहर बाद में कहते हाय मैं लुटिया गया। वो लुटिया तो तू जाना ही है ना जितो तेनू पता ही नहीं। मैरिटल लाइफ के जो मैटर्स हैं, फिर बीवियां रोती हैं, अरे रोना तो तूने है, तुझे पता ही नहीं। बाइबल मुकद्दस में मैरिटल लाइफ के जो मैटर्स हैं उनको कैसे हैंडल करना है? मैं थोड़ी थोड़ी कारी देता हूँ वजाहत, मगर तसल्ली से करेंगे। ए जुबान ते मैं लाजमी करनी जे, क्योंकि बंदा बाँचो उछलता है तो पहले की उछलती है? जुबान। शाबाश। पांचवी चीज जो इस बदन की नाजायज ताकतवर रगबत है, प्राउड, गरूर। गरूर भी बड़ा करता जे बदन। बदन कहता है जो मैं होर कोई हो नहीं सकता। अपनी आंखें बंद करें। गॉड ब्लेस यू। चश्मे से